Dear students, welcome all of you in the chapter number 8. Today we are going to study the chapter number 8, and the name of the chapter is Introduction to Trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री तो सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पता है। शुरू में थोड़ी टफ लगती है और जब अपने को इसको समझ में आ जाती है तो बहुत इजी लगती है। चलिए आ जाइए, लेट अस स्टार्ट। ओपन द बुक एंड बी रेडी। सो इन पर्टिकुलर राइट एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पर्टिकुलरली राइट एंगल्स पे ही काम करती है। ओके, एग्जाम्पल दिया है। सपोज स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल विजिटिंग कुतुब मीनार। A child, this student is looking the Qutub Minar from this side and he want to find out the height of the Qutub Minar. Is it possible? Merely looking at the Qutub Minar and finding the angle between this. Can we find the height of the Qutub Minar? Yes, we can with the help of trigonometry. Second example. A girl is sitting here and looking at this flower pot placed at the stair of a temple. She wants to find out the distance or the width of the river. Is it possible? Is it possible? अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, रियल में करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, there is a balloon A, there is a balloon B, and balloon A is moving towards some distance, है ना, वो some distance पे move कर रहा है। तो can we find out the distance moved by the balloon? This all we can do with the help of trigonometry. Okay, so what is trigonometry now? Trigonometry, the word comes driven from the Greek word trigon and metron, and this is called trigonometry. That is the relationship between the sides of the sides and angle of a triangle. It was earlier known in Egypt and Babylon. These days we are using this in engineering and physical science based on the trigonometrical concepts. Some ratio of the sides of the right angle with respect of its acute angle. राइट एंगल ट्राइंगल है तो रिमेनिंग एंगल तो एक्यूट एंगल होगा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हम अभी सारा डिस्कशन एक्यूट एंगल्स पे ही रहेगा। द एंगल्स विच मेजर्स बिटवीन 0 and 90. Anybody, can you tell me what is the acute angle which you have already studied in your class 9th, 8th? Angle, the total angle or angle below 90 degrees called acute angle. Okay, अभी complementary angle भी आने वाला इसी चैप्टर में। Suppose this is angle A and suppose this is angle B. So angle B and E are angle A and B are complementary because the total sum is 90 degree. This is an acute angle because it is less than 90 degree, and it is a complementary angle if there are two angles. Okay, there are one more angle which is called supplementary angle. Can anybody tell? Yes. If you have this angle, the total is 180 degree. We call them supplementary angles. Okay, अभी इस चैप्टर में आगे आएगा, अभी तो सिर्फ एक्यूट एंगल पढ़ लो। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। अच्छा, जब हम कभी कोई राइट एंगल बनाते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होता है,
एक तो होता है हाइपोटेन्यूस, होता है ना, होता है। एक दूसरी जो दो साइड से, उसको हम एक को बोलते हैं बेस, एक को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। In a right angle triangle, we have three sides. One is we call hypotenuse. क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूस, सबको मालूम है। अब बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। विच वन इज द बेस? इफ आई टेक दिस एंगल, इफ आई टेक दिस एंगल थीटा, द साइड एडजेसेंट टू द एंगल विल बी, बोलो जल्दी बोलो, विल बी वी कॉल बेस, and the side in front of that angle will be we call perpendicular। तो छोटी सी एक बात आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये काम की चीज है। चलो, अगर ऐसा है बच्चों, तो अगर ये वाला एंगल होता, हाँ ये वाला एंगल होता, इफ वी टेक दिस एंगल, नया बना रहा हूं फिगर में, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। If we take this theta, this is a theta, this is, suppose this is A, B and C, what will be the base? Base will be AC, adjacent to the angle, उससे जुड़ी हुई, एंगल से जुड़ी हुई लाइन, और एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर। छोटी सी बात को आप जरा रिमाइंड कर लें तो थोड़ा सा समझने में अपने को इजी रहेगा। तो यहाँ पर जरा आप सभी बच्चे देख लें एक बार। दिस इज योर साइड एडजेसेंट टू द एंगल, जिसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और इन फ्रंट ऑफ द अपोजिट ऑफ दिस एंगल कॉल्ड परपेंडिकुलर। ओके, थोड़ा सा आ गया समझ में? चलें आगे। इसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहां जब एंगल ये सी हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब मैं सीधे सीधे आ रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। हाँ, नाम पढ़िए। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोजेकेंट, फिफ्थ सेकेंट एंड लास्ट वन इज द कोटेंजेंट। क्या है? अच्छा लगा सुनकर? है थोड़ा अजीब लगा क्या? अजीब लगा? ओके, अपन इनका शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कोस, इसको बोलेंगे टेन, इसको बोलेंगे कोजेक, इसको बोलेंगे सेक, और इसको बोलेंगे कॉट। ठीक है, यहां तक गाड़ी बराबर? तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोजेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? और हमें याद कैसे होगा? हम कैसे समझेंगे कि कौन सा साइन थीटा है, कौन सा कॉस थीटा है? हाउ टू रिमेंबर दिस? तो अब आ जाइए, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज पढ़ाने जा रहा हूं। आ जाइए मेरे साथ। और नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल अबाउट द फॉर्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन, अब मैंने आपको बढ़ा दिया परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा और हाइपोटेन्यूस कौन सा। ठीक है, बार बार नहीं बताने की जरूरत है। अब केवल मैं आपको फॉर्मूला याद करा रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
किसी को हिंदी में याद करना हो तो लंब अपॉन कर्ण। किसी को अगर हिंदी में भी याद करने की इच्छा हो, हिंदी में भी कभी कभी टर्मिनोलॉजीज को दोनों लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए, तो कभी कभी याद करने में इजी रहता है ना। तो मैं इंग्लिश भी बता रहा हूँ, हिंदी भी बता रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या लंब अपॉन कर्ण। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहते हैं, ओके। और बेस को आधार कहते हैं, आधार। कोस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस या आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब अपॉन आधार। लेकिन याद कैसे रखें भाई, ये तो हमको याद नहीं होने वाला है। हमको कोई तरीका बताइए कि याद हो जाए। तो हमने छोटा सा एक पुराने जमाने का फार्मूला निकाला, सभी बच्चे यही फार्मूला पढ़ते आए। इंग्लिश वाले बच्चे याद करेंगे PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। और हिंदी वाले याद कर सकते हैं लाल अपॉन कक्का। अब बताओ कौन, मेरे को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, कोस थीटा आधार अपॉन कर्ण, टेन थीटा लंब अपॉन आधार। आया मजा? तीनों चीजें समझ में आ गई क्या? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूले हमने याद कर लिए। बोलिए जरा मेरे साथ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोस थीटा बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो हो गए तीन। अब साइन का उल्टा है कोजेक। साइन का जो उल्टा अपोजिट है कोजेक, कोस का अपोजिट है सेक और टेन का अपोजिट है कोट। बस हो गया याद। तो कोस थीटा कोजेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो इसको उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, काम खत्म। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उल्टा कर दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सभी को याद हो गया, कुछ भी टफ नहीं है ना, कुछ भी टफ नहीं है। ये अब आपको इसमें ऐसे फॉर्मूला याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा ना, ये सबको याद करने में, तो मैंने आपको ऐसा टेक्निक बताया कि आपको जल्दी से याद हो गया। पंडित बद्री प्रसाद, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, बोलिए हर हर बोले, और उधर कहते हैं लाल अपॉन कक्का। चलिए, ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपने इंडिया में भी आर्यभट्ट ने इसका इन्वेंशन किया था। हाँ, साइन उन्होंने निकाला था, उसके बाद कोसाइन और ये भी आया। चलो यहाँ तक भी हमें कोई विशेष बात नहीं है। अब एक और बात आई है कि ट्रायंगल का जो साइड की जो लेंथ है वो चेंज होती जाए, मान लिया, लेकिन रेशियो अगर चेंज नहीं हो, रेशियो चेंज नहीं हो, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। बस इतना सा याद कर लीजिए, इतना सा याद कर लीजिए, लिखिए। The values of the trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angle remains the same। एक छोटी सी बात और हमने सीखी कि एंगल सेम रहे और रेशियो अगर उनका साइड्स का सेम रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक और चीज़ सीखने वाली है,
कभी आपको ऐसा लिखा हुआ है साइन ए स्क्वायर, तो इसको लिखने का तरीका है ये, ए से नहीं लिखना है, ए से लिखना है, ठीक है। फिर एक और बात, इसमें ये भी कहा है कि साइन ए अगर आपको कहा जाए या साइन थीटा कहा जाए तो वो साइन इंटू थीटा नहीं है, थीटा की साइन वाली वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन इंटू मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ओके, यहाँ तक भी याद हो गया। अब एक और चीज़ याद कर लो, साइन थीटा टेन कॉस थीटा टेन थीटा तो आपको याद हो गया। एक और फॉर्मूला याद कर लो, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बोलो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला छोटा सा, अभी छोटे छोटे और फॉर्मूले आएंगे, अपन छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ते जाते हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द एग्जांपल नंबर 1। एक बात और हमको बताई गई है कि जब कभी हमारे पास कोई भी एक रेशियो आ जाए, मान लिया हमको दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 1/3, मान लिया हमको दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 1/3, 1 परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज, तो हमने इसको 1 को 1 के मान लें और 3 के मान लें, तो ये के ये 3 के पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये बन गया ए बी इज इक्वल टू 2√2। अब अपने पास तीनों साइड आ गई, फिर आप कुछ भी निकालो, कोस थीटा निकालो सर, बोलिए सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2√2/3। सर बोलिए टेन थीटा, जल्दी बोलो, 1/2√2। सब निकाल सकते हो ना, जिसकी आपकी इच्छा सब निकाल सकते हो। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं इफ यू नो वन रेशियो। इसीलिए यही क्वेश्चन करने के लिए अपन आ रहे हैं। एंड आ जाइए सीधे एग्जाम्पल नंबर 1 पे। गिवन दैट 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। चलिए शुरू करेंगे। एक बार मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले एंगल A की बात चल रही है, तो 10 दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 10a इज इक्वल टू 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको अपन ने 4 को 4k मान लेते हैं, इसको 3 को 3k मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, निकालिए, ये हो जाएगा 5k, हो गया। तो साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, कोस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, कोट उसका उल्टा हो जाएगा 10 का तो 3/4, कोजेक साइन का उल्टा हो जाएगा तो 5/4, सेक कोस का उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 5/3। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, जब फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, एक बार ढंग से सारे बच्चे कर लीजिए। ये जो 5 एग्जाम्पल है मैं धीरे धीरे कराऊंगा आपको, लेकिन आपको बहुत समझते समझते करना है और ढंग से सॉल्व करना है। 10a हमें दिया हुआ है 4/3, लिखिए लेट परपेंडिकुलर, लिखिए क्या BC, परपेंडिकुलर BC बराबर 4k, बेस AB इज इक्वल टू 3k, put the Pythagoras theorem, you will find AC is equal to 5k. So now निकालिए sin A, cos A, cos A, sec A और cot A। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जिसको आ गया उसको आगे वाले क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी आएंगे। If B and Q are acute angles such that the sin B is equal to sin Q, prove that the B is equal to Q. There are two triangles.
ABC, PQR. B and Q are acute angles. Sin B क्या होता है? Sin B फॉर्मूला बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AC, यस बच्चों, हाइपोटेन्यूज AB, वेरी गुड, परपेंडिकुलर PR अपॉन PQ, हाँ। तो अब हमें दिया हुआ है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो ये हो गया AC अपॉन AB इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। इसको मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, लिख सकता हूँ क्या? AC अपॉन PR, तो मेरा रेशियो कुछ सेम हो जाएगा। मैंने लिख दिया, दोनों को मान लिया मैंने K, फिर मैंने BC निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, और BC अपॉन QR किया, BC की वैल्यू रखी, QR की भी वैल्यू रखी, दोनों को भी K आ गया, तो मेरा फॉर्मूला ये आ गया रेशियो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो तीनों जो वो है SSS क्राइटेरिया से दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलो मेरे साथ करो। There are two triangle ABC and BQR, angle B and angle Q. Given that sin B is equal to sin Q, it means that AC upon AB is equal to PQ और PR upon PQ। जरा इसको शिफ्टिंग किया, AC upon PR, AB upon PQ इज इक्वल K ज्यूम कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम से AB और BC निकाला, तो BC बराबर दिस, और PQR से भी QR निकाल लिया। अब हमने BC अपॉन QR का रेशियो निकाला, क्योंकि दो साइड्स तो हो गए ना, एक ही साइड तो बच रही थी। इसको जरा सॉल्व किया, ये तो आपस में कट गया, ये बच गया K। इसका मतलब तीनों जो साइड्स हैं ना, उनका रेशियो सेम होने से ट्राइंगल सिमिलर है, तो एंगल भी सेम होगा, बस, वेरी इजी। Example number 3, consider triangle ABC, right angle at C. When AB is equal to 29, BC is equal to 21, ABC is equal to theta, determine this. निकालो। क्या दिया है? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ABC, क्योंकि हमको दिया है B राइट एंगल, क्या है ना, दिया है ना, राइट एंगल एट C, ओके, राइट एंगल एट C दिया हुआ है। ट्राइंगल बनाते वक्त गलती मत करना, साफ साफ बताना, क्योंकि इन्होंने कहा है एंगल C राइट एंगल है, बच्चे यहां ही गलती कर देते। राइट एंगल पहले पकड़ो, उसके बाद हमें मालूम चल जाएगा ये C है, तो ये हो जाएगा ABC। और ये मैंने एंगल दिया एक्यूट एंगल, तो ये मेरे को ए बी दिया हुआ है 29 और बेस हो गया मेरे लिए ये, तो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, मैंने पाइथागोरस से निकाला, ए सी यहाँ आ गया, परपेंडिकुलर 20 आ गया मेरे पास, तीनों साइड की वैल्यू आ गई। क्या करना है अब निकालना है आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 अपॉन 29, यस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सॉल्व कीजिए, जरा इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, सेम आ गया, आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। सेकंड भी कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन जरा इसको एलसीएम ले लिया, 29 सॉल्व करना सीखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, बहुत इजी हो जाता है ना, अदरवाइज तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन सारे सॉल्व इसीलिए करवाता हूं मैं, क्योंकि अगर मान लिया आपने सॉल्व नहीं किया तो आप क्या करोगे, यहां पे आके बैठ जाओगे कि सर ये तो क्या करें, इतना सारा स्क्वायर कहाँ से निकालें,
21 का स्क्वायर निकालो, फिर 20 का स्क्वायर निकालो, फिर दोनों को माइनस करो। ये तो बड़ा गड़बड़ है, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसको जल्दी से आ जाएगा। आंसर आ गया जल्दी से, 41/841 आ गया। यस। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इफ 10A इज इक्वल टू 1, 10A इज इक्वल टू 1, ABC दिया हुआ है और ये मेरा 10A है। हाँ 10A, इसका मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर BC है, तो BC अपॉन AB, बस यही सीखने वाली बात है। तो क्या हुआ, 10A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू हो गया 1। क्या हो गया, 1। तो BC इज इक्वल टू हो गया AB इज इक्वल टू मैंने मान लिया K, तो दोनों तो हो गया सेम, K और K। फिर मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर पे AB स्क्वायर, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये हो गया 2K स्क्वायर को मैंने लिखा K√2। तो मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया K√2। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है भाई, अब निकालना है मेरे को 2 sin A cos A को इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। sin A क्या होगा, sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों निकला 2 sin A cos A 2 into दिस, ये दोनों मिलके हो गया 2/2, आंसर आ गया 1। यस, वेरीफाइड, प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन, सभी बच्चे समझ के इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। अगर कहीं गाड़ी अटक रही है, वीडियो पॉज कर दीजिए और 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए, वीडियो को रन कीजिए वापस से, लेकिन समझ के करना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7, OP इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है और OQ माइनस PQ, अच्छा इन्होंने क्या दिया है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दे रखा है। फाइंड करना है साइन Q और cos Q की वैल्यू। वाह भाई वाह, cos Q ये वाला थीटा है। सबसे पहले तो हमको तीनों साइड्स निकालनी है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ, बताओ। ये मेरा ट्राइंगल, मुझे OP दिया हुआ है 7 और OQ माइनस PQ 1 दिया हुआ है। इसका मतलब OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। ओके, यस, फॉर्मूला लगाओ पाइथागोरस, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ की जगह रख दीजिए 1 प्लस PQ रख दीजिए। सॉल्व करो, करिए सॉल्व। इसका होल स्क्वायर खोलिए, इससे ये कटेगा 2PQ 48, PQ आ गया बताओ 25। तो फिर ये कितना आ गया भैया, PQ 25 है तो OQ आ गया कितना 25, 24 आया PQ, तो OQ आ गया 25, ये आ गया 7। तीनों साइड मिल गई। अब क्या निकालना है, अब निकालना है साइन Q और cos Q। साइन Q और cos Q, cos Q, तो ये मेरा बेस कौन सा है बताओ जल्दी बोलो, विच वन इज द बेस, बेस बोलो बच्चों। बेस इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू 24 और परपेंडिकुलर बोलो बच्चों, ये हो रहा है OP इज इक्वल टू 7। साइन Q परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बोलो जल्दी, 7/25। आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। cos Q बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। सभी बच्चे कर लीजिए,
किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एक बार आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? साइन कॉस टेन, कॉज एक्स सेक कॉट, हाँ ये पढ़ लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद कर लिया। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद कर लिया। कोजेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा 1 अपॉन कॉस थीटा। कोट थीटा टेन का उल्टा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। थीटा क्या है? कोई भी एंगल, ये ग्रीक वर्ड है। चलिए, जब आप इतना जानते हो तो एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक्सरसाइज 8.1 ऑल क्वेश्चंस विदाउट माय सपोर्ट करोगे? करो, अच्छी बात है। उसकी वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद सारे क्वेश्चन करने के बाद वीडियो रन करना है ना। चलो, इन ए बी सी ट्राइंगल ए राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी निकालना है। इस क्वेश्चन को जिसने कर लिया उसको मान लीजिए शुरू का जितना भी सब समझ में आ गया। क्या दिया हुआ है? ए बी और बी सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी और दिया हुआ है बी सी, और हमें कहा गया है राइट एंगल कहाँ है? बी पे। ये ध्यान रखो, राइट एंगल बी पे, ये ध्यान रखो। अब हमें लगाना है पाइथागोरस। AC स्क्वायर निकाल लीजिए, 25 आ गया। अब क्या निकालना है? अब है बात, यहां तक तो सभी को आता है। साइन ए, साइन ए, ये साइन है, बेस मालूम है, पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए 7 अपॉन 25, कोस ए 24 अपॉन 25। यही पूछा है ना? यही पूछा है ना? अब मामला यहां नहीं, अब गाड़ी शुरू होती है। यहां तक तो सबको आता है। अब पूछ रहा है साइन सी। उल्टा किया इसने। साइन सी करते ही बेस चेंज हो गया, परपेंडिकुलर ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो साइन सी इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, और कॉस सी इज इक्वल टू हो गया 7 अपॉन 20। आया क्या? सभी के आंसर आया क्या? पहला क्वेश्चन अच्छा लगा? सभी लोग कर लो। इजी इजी क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस। चलिए, फिगर नंबर 8.3 आपको निकालना है 10p माइनस कोट आर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे।